Good morning, students. Today we are going to start our next chapter or the new chapter number 11, force and pressure. So this is lecture number 1 of chapter number 11, and today's topic is force, right? So you have already have some idea about the force. Now, first topic is force. Now see, a person is pushing the car, or there is some sort of problem in the car, and now the person is pushing the car. What will happen? The car will get some motion, right? In second picture, a hockey player is pushing the ball with a hockey stick, right? In the third, the football player is kicking the ball, or we can say it is pushing the ball, right, to the target. Now, in the fourth picture, a person is pulling the cart, right? In next picture, picture number 5, a horse is also pulling the cart. Now, in next picture and the last, that is sixth picture, there is a game in which children are pulling the rope, right? Now, we can say the force is a push or pull of an object, or force is the push or pull on an object, right? Example, if an object has to be moved, it has to be pushed or pulled. Now see, in first picture, car is moving after getting some push. In the second picture, ball also getting some motion due to push. In the third picture, the ball or the football is also getting motion. In fourth picture, the cart is also getting some motion. Next, in this, horse is pulling this cart, and the cart is getting some motion, right? Now, in layman language, you can say the force is the push or pull on an object, right? Now, force are due to interaction. Now, forces are due to interaction. An interaction of one object on another object result in force between the two objects. If there is an interaction between two objects, then there would be the force between two objects. Example, if a man stands behind the car does not move, right? Simply the man is standing behind the car will not move. But if he pushes the car, he applies the force, and the car begins to move in the direction of applied force. अगर कार के पीछे कोई आदमी खड़ा है तो कार मूव नहीं करती, लेकिन जब उसी कार को वो आदमी फोर्स अप्लाई करता है तो वो मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है ना? और किस डायरेक्शन में मूव करेगी? जिस डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई कर रहा, ठीक है? हम पहले ही बता चुके हैं, पुश और पुल को ही हम फोर्स कहते हैं. तो देयर शुड बी इंटरेक्शन, राइट? नाउ देयर इज ए इंटरेक्शन बिटवीन द मैन एंड द कार, दैट्स व्हाई both are getting the force. The car is applying the force on the person, and the person is also applying the force on the car. So this is mutual interaction, right? Now see, exploring forces. Now see, there is an object and two forces acting on it in the same direction. Force number 1, F1, it is applicable from right to left direction,
and F2 is also in right to left. So the resultant force gained by this object will be F1 plus F2, since both the forces are in the same direction. If two forces act on the same direction, the net force is the sum of the two forces. But in the second case, if there are two forces in opposite direction, now see, this force number 1 is applying from left to right direction on this object, and the force F2 is applied from right to left direction. Now in this case, F2 is greater than F1, right? Now see this vector, it is the longer vector, it means F2 is greater force. अगर राइट से लेफ्ट की तरफ बड़ा फोर्स लग रहा हो और लेफ्ट से राइट की तरफ छोटा फोर्स लग रहा हो, तो द नेट फोर्स विल बिकम्स F2 माइनस F1. यानी अगर यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, राइट, और इधर से जो फोर्स लग रहा हो वो सिर्फ 8 न्यूटन का है, तो द रिजल्टेंट फोर्स विल बी 10 माइनस 8 मीन्स 2 न्यूटन, राइट. तो इफ टू forces act on the body in opposite directions, the net force is the difference between the two forces. Now the effect on object depends on the net force acting on it, right. Effect किसका होगा? नेट फोर्स का, फोर्स का नहीं, नेट फोर्स का. नेट फोर्स का मतलब जैसे इस केस में 10 में से 8 तो 2 न्यूटन का इफेक्ट है यहाँ. अब मान लिया ये भी 10 न्यूटन का हो और दूसरा फोर्स 8 न्यूटन का हो, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? 18 न्यूटन. ठीक है. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, force can make an object to move from rest. फोर्स क्या कर सकता है? किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है, जो चीज रुकी हुई है उसको मूव करवा सकता है. ठीक. फॉर एग्जांपल आप इसको देख रहे हैं, इस डायग्राम में कार जो है वो रेस्ट में थी, लेकिन जैसे ही उस पर फोर्स अप्लाई हुआ कार आगे बढ़ने लगी. तो द फोर्स कैन मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेस्ट. कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो उसे मूव करवा सकता है. दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ द फोर्स, राइट. नाउ सेकंड, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट. अब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फोर्स उसको रोक सकता है. पहले में तो क्या था? रुका हुआ था, फोर्स लगा तो मूव करने लगा. दूसरे इफेक्ट में क्या है? फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल दिस पिक्चर, the goalkeeper of the football team is stopping the moving ball. बॉल को किसी ने किक करा था, वो मूव करते हुए गोलकीपर गोल की तरफ गया, गोलकीपर ने उसे पकड़ लिया, यानी वो मूव कर रहा था तो वो आ गया रेस्ट. ठीक है. तो पहला इफेक्ट क्या था? रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है फोर्स. दूसरे में क्या? मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट है उसको रोक सकता है. जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में क्या होता है? जैसे ही बैट्समैन बॉल को मारता है, ठीक है, तो फील्डर क्या करता है? उसे रोक देता है. तो मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट मिल गया है. नाउ द थर्ड इफेक्ट इज द फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग. अब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फोर्स उसकी स्पीड चेंज कर सकता है, बढ़ा सकता है या कम कर सकता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप इस साइकिलिस्ट को देख रहे हैं, ये मूव कर रही है. अगर ये तेजी से पेडल मारने लगे तो स्पीड बढ़ जाएगी. ठीक है. और अगर चल रही हो पेडल मारते, अगर ये पेडल मारना बंद कर दे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी. तो कहने का ये मतलब है कि फोर्स क्या करता है? किसी बॉडी की स्पीड को या तो एनहांस कर देगा या फिर डिक्रीज कर देगा. तो दोनों तरीके से उसकी स्पीड को चेंज किया जा सकता है, बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है. ठीक. नाउ द फोर्थ वन इज फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या कर सकता है? किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन बदल सकता है. वो कहीं और जा रही थी ऑब्जेक्ट, जैसे ही फोर्स लगा वो दूसरी डायरेक्शन में जाने लगा.
फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेट बॉल, बैट्समैन क्या करता है, सीधी आती हुई बॉल को किसी भी डायरेक्शन में धकेल सकता है, यानी वो क्या कर रहा है, केवल डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स इज अ पुश और पुल which can number 1 move the object from the rest, number 2 it can stop the moving object, number 3 it can change the speed of the moving object, or it can change the direction of the motion of the object. There are 4 effects of the force, ठीक है ना। जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से, कोई बॉल है रेस्ट में, आपने इसको किक मारा, किक मारते क्या करेगा, मूव करने लगेगा, तो रेस्ट में था इसलिए मोशन में आ गया। दूसरा क्या है, बॉल मूव कर रही थी और फील्डर ने उसे पकड़ लिया, ये फील्डर ने उसे पकड़ लिया, क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तीसरे में क्या है कि ये स्पीड चेंज कर देगा, मान लिया यहाँ पे बॉल आ रही थी मूव करते हुए, आपने तेजी से फुट से इसे मारा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कि हो सकता है कि ये मूव कर रहा था, फुटबॉल की बात करें, मूव कर रहा था, आपने इसे किक मारी और ये इधर की तरफ मूव करने लगा, इसकी डायरेक्शन बदल गई। कुल मिला के फोर्स जो है ये तो स्पीड बढ़ा देता है या कम कर देता है। दूसरी बात कि ये जो है मोशन के डायरेक्शन को बदल देती है, ऑब्जेक्ट किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा था, फोर्स लगा, इसकी डायरेक्शन बदल, या फिर क्या होगा कि जो स्पीड थी वो चेंज है। और फिफ्थ इफेक्ट है इसका कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं आटे का गोला होता है स्फेरिकल, उस पर फोर्स लगाया, उसका शेप ही बदल गया। बॉल है, आपने इस पे दोनों डायरेक्शन से फोर्स लगाया, ये अभी स्फेरिकल था, तो जैसे आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे ये ओवल शेप का हो जाएगा। तो फोर्स क्या कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है। तो पहली बात तो मोशन, रेस्ट और मोशन बदल सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड बदल सकता है और शेप भी चेंज कर सकता है। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कि फोर्स जो है वो इंटरेक्शन का इफेक्ट होता है। तीसरा हमने पढ़ा कि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। और चौथी चीज हमने पढ़ी कि फोर्सेस के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपके लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी अगले लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।